Resume recording. So today, before starting with the SHRM officially, I'm going to again little bit a description about how HR is related because हमने last lecture में थोड़ा सा सिर्फ just पढ़ा था. Now this time we are going to go in more detail of HRM because strategic HRM is part of HRM. Till the time you are not clear about what is human resource management, you won't be able to link it with strategy. So we'll start with the discussion of by this end of this chapter, you will be able to identify what is human resource management, that how managers use these concepts and techniques using different examples. We'll discuss what is line manager, what is staff manager, because that's also come under HR department. Then we have different roles in terms of and executing company strategy. When the word strategy comes, that's strategic. Human resource management we will be discussing about, and today's world, that how it has have a crucial impact on all the today's HR manager life, because after even before COVID, but now after COVID, what new practices, new form, new approaches has been implemented in HR. We'll discuss all on that as well. Last but not the least, in the end, we'll discuss how we are going to go with the plan of this particular book. So let's start with what is human. जिस तरह मैंने एक बात की, मैनेजमेंट में हमेशा हम बात करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, वैसे कभी 5 फंक्शंस कहा जाता है, कभी 4 फंक्शंस कहा जाता है, जिसको हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. So we all are familiar. I hope we know what is planning. इसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये कोर्स होता है कि planning is basically it's the first phase of anything when we start. What is the plan? क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा. Then comes the second phase, organize करते हैं हम. अच्छा, इस चीज को ऐसे करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ऑर्गेनाइज किया हमने. स्टाफिंग इज बेसिकली हमने अगर कोई बंदा उसके लिए डेजिग्नेट करना है या देखना है कि कैसे क्या होगा, किस चीज को कौन कौन देखेगा, तो एक्चुअली हम स्टाफ कर रहे हैं. या हमें अगर कभी कभी हायरिंग करनी है उस चीज के लिए तो हम हायर भी कर सकते हैं. लीडिंग इज अगेन लीडिंग, कौन सा बंदा उसको लीड करेगा, देखेगा, कंट्रोल करेगा, एंड देन लास्टली हम उसको कंट्रोलिंग फैक्टर पे लेके जाएंगे कि हाउ इट हैज बीन मैनेज्ड, कि वो कैसे उसको कंट्रोल करना है, आइदर प्रॉपर्ली कंट्रोल हो रहा है, मॉनिटरिंग कैसी है, फॉलोड बाय फीडबैक इज गिविंग, हम फीडबैक देते हैं कि कैसा फीडबैक जा रहा है. तो दिस इज बेसिकली द रिविजन और रीकैप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. फिर हमने बात की थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट पीपल. पीपल की जब हमने बात की थी, हमने कहा 9 फंक्शंस होते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, रिवॉर्डिंग है, अप्रेजल है, देन कंपनसेशन है, देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, देन उसके हेल्थ एंड सेफ्टी है. So all these are aspect of HR. But right now, what important aspect is people. There is a very famous quote of Henry Ford कि अगर if I'll translate it into Urdu, कि अगर मेरा सब कुछ ले लो, मेरे अगर फॉर एग्जांपल मेरी जितनी इंडस्ट्रीज है, मेरे बाकी चीजें, दिस इज सेड बाय हेनरी फोर्ड, दैट्स द पायनियर इन एचआर, कि अगर आप जिंदगी में आपकी सारा कुछ भी चला जाता है ना, अगर आपके पास लोग सही हैं, अच्छे एम्प्लॉयज है आपके पास, डेडिकेटेड, आपके पास वर्क फोर्स है, तो यू कैन बिल्ड एनीथिंग बाय वर्किंग विद देम. अगर आपके पास, चलो फॉर एग्जांपल इफ ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है या कुछ हो जाता है, फॉर इंस्टेंस, but if they have the right employee who are willing to work along with that, they can recover any loss. This is the same example that we need to uh, give this importance to our people. People are like money. अगर आप लोग कहते हैं बहुत दफा ऑर्गेनाइजेशंस बाकी चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं, मे बी अपनी स्ट्रक्चर में, मे बी अपने डायनामिक्स में, मे बी अपने बिल्डिंग्स में, मे बी अपने जो प्रॉपर्टी में, but they are not actually investing on people. Those organizations who actually give importance, who think employee are like number one asset of their organization, they flourish and they are more into progress as well. So this is according to HR, and that's also true in every sense. So these are some of the jobs of a manager. जिस तरह अगर हमने एक बात का HR manager क्या क्या करता है, वो जिस तरह जॉब एनालिसिस करता है, we'll discuss what is job analysis. But अगर जॉब एनालिसिस को हम एक देखा जाए, वो देखता है कि एक बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या उसने टास्क करना है, जिसको हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन आती है और जॉब स्पेसिफिकेशंस आती हैं. दिस इज वन नेचर ऑफ द जॉब ऑफ अ मैनेजर. उसने प्लानिंग करनी कि हमारे पास अगर कितनी लेबर, अगर दैट्स रिलेटेड टू सम वर्क फोर्स या फैक्ट असेंबली लाइन वर्कर्स है हमारे पास, हमें लेबर और चाहिए, किस यूनिट में चाहिए, तो आई नीड टू हैव दैट प्लानिंग इन माइंड.
अगर मुझे नए लोग हायर करने, इट्स जस्ट नॉट विद द वर्कफोर्स और फैक्ट्री लाइन वर्कर्स की, इट कुड बी विद एनी डिपार्टमेंट. मुझे अगर नए लोग रिक्रूट करने हैं तो हैव टू प्लान फर्स्ट कि मुझे अच्छा क्या करना है, उसमें मुझे उसको कितनी सैलरी देनी है, क्या डिजिग्नेट देनी है, किस डिपार्टमेंट में उसकी प्लेसमेंट होगी, क्या उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी. सो हैव टू डिसाइड बिफोर गिविंग और एडवर्टाइजिंग दैट पोजीशन. आफ्टर ऑल आई हैव टू सेलेक्ट. सिलेक्शन के बाद ओरिएंटेशन हो जाएगी, ट्रेनिंग होगी. देन आई हैव टू डिसाइड अबाउट द कंपनसेशन. दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैनेजर जॉब कि हमने डिसाइड करना है कि उसकी ब्रैकेट क्या होगा, सैलरी क्या, ब्रैकेट क्या हमने रखना है. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. देन वी कम इनटू द अप्रेजल कि हमने उसको किस तरह अप्रेजल करना है. मे बी हमने कोई स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड हमारे कोई केपीआईज बने हुए हैं और जो केपीआईज उसने अभी अचीव किए आउटकम्स, हमें उससे एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि यार ये हमारा स्टैंडर्ड था, ये इसने एक्चुअल परफॉर्मेंस की है, तो ये हमारा उसका अप्रेजल बन जाएगा इजीली. तो इसी तरह जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं वो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि दिस इज द थिंग यू नीड टू डू. अगर आप इसको compete करते हो या इसको कर पाते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेल. इफ नॉट, कोई चीज नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली दैट कैन बी लाइक आपको उसको मे बी ट्रेनिंग चाहिए या आपको उस चीज की मे बी प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन दैट हाउ दे केटर. कभी कभार आपको उसका फायदा भी होता है, कभी कभार आपको उसके अप्रेजल में तो मतलब यू कैन हैव बैड अप्रेजल एज वेल. देन कम्स अ मैनेजर जॉब. डेफिनेटली कोई मैनेजर भी सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर ही और शी इज नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेटर, गुड लिसनर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं कर सकता, लोगों को इंटरव्यू नहीं कर सकता, काउंसल नहीं कर सकता. बिकॉज अंडर मी इफ आई एम मैनेजिंग अ डिपार्टमेंट, there are different people under me, they are human beings, I need to listen them, I need to counsel them. Maybe they have different grievances, maybe they have different complaints, maybe they have good feedback as well. So that's all come through communication. So again, the within organization may you hear क्या open door policy है, your boss is easily accessible और आपकी जो top management है, you can easily communicate with them. So this is again one aspect of manager's job. Then comes training and developing. This is also one important aspect कि HR को या किसी पर्सनल को, कोई भी पर्सनल अगर फॉर एग्जांपल किसी भी डिपार्टमेंट का है तो उसके नीचे जो लोग भी काम कर रहे हैं उसको देखना है कि उनको ट्रेनिंग की जरूरत है किस स्पेसिफिक चीज में. अगर मार्केट में कोई चीज जिसमें मैं कहूँ टेक्नोलॉजिकल चेंज है, मे बी कोई और अगर इंडस्ट्री में स्विच आ रहा है, तो ही और शी नीड टू आइडेंटिफाई कि मुझे अपने एम्प्लॉयज को भी वो ट्रेनिंग सर्टन करवानी है. सो अगेन बिकॉज डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी, अदरवाइज वो बंदा आपकी जो जॉब पे स्टेगनेंट हो जाएगा, कोई करियर प्रोग्रेशन, करियर एनहांसमेंट नहीं हो पाएगी. दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज आल्सो वन एस्पेक्ट फॉर द पर्सनल. फॉर द जो मैं कहूँ आपका जो मैनेजर है उसको सोचना चाहिए अपने एम्प्लॉय के बारे में जो उसके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है कि हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या नीड है. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एम्प्लॉय कमिटमेंट. एम्प्लॉय कमिटमेंट तभी आएगी जब ऑर्गेनाइजेशन से मैं अब लाइक आई फील दैट कनेक्शन. जब मेरे में वो कनेक्शन लूज होगा या आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम मे बी आई एम डीमोटिवेटेड, मे बी माई रिलेशनशिप माई विद माई बॉस आर नॉट दैट मच हेल्दी, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा मेरी कमिटमेंट को भी. बहुत दफा आप लोगों ने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग खुश नहीं होते या लोग सेटिस्फाई नहीं होते अपनी जॉब से. मे बी दे आर गेटिंग वेरी गुड सैलरी, मे बी देयर दैट एटमॉस्फेयर इज वेरी गुड, बट आपका जो इमीडिएट बॉस है जिसको आपने रिपोर्ट करना है वो अच्छा नहीं है आपके साथ, या वो बहुत बायस्ड है, या वो आपके सही काम करने नहीं दे रहा आपको, हर चीज में आपको बहुत ज्यादा लाइक क्वेश्चनिंग करता है या व्हाटसोएवर. सो कहीं ना कहीं यू लूज इंटरेस्ट फ्रॉम योर जॉब. बहुत दफा आपको दिल चाहता है काम करने का, बट आपको क्या पता है यार काम करूंगा 10 बातें सुननी पड़ेंगी व्हाटसोएवर, तो लिटरली लाइक आई डोंट वांट टू वर्क फॉर दैट. तो बहुत दफा बहुत सी चीजें आती है भी इंसान खामोश हो जाता है कि यार बोलूंगा तो फंस जाऊंगा. तो दिस इज अगेन वन पार्ट ऑफ employee commitment. The employee wants to be committed, but there are certain issues or there can be certain constraints that could be part of that. Otherwise, employee commitment is really very necessary. अगर एक आपका employee demotivated है या he is not satisfied or whatever, उसका morale high नहीं है, so definitely it will be impacting the job in the longer run as well as in the shorter run. वो काम नहीं करना चाहेगा जिस तरह आप you don't want to work. सुबह when we wake up we don't like to go to the work. यार क्या मतलब क्यों जाना पड़ रहा है, ना जाऊँ, something like that. So this is also managerial aspects for the job. Any confusion? No, ma'am. Okay. So अगर हम वही वाली बात है जिस तरह मैंने कहा, एक जो कोई भी पर्सनल है HR में हो या कहीं पे, they are not like, they're also human beings.
they're also engaged, or they can be indulged in some personal mistakes as well. Sometimes from the HR department, that could be one of the reasons that you hired the wrong person. अब डेफिनेटली इनकी इंटेंशन रॉन्ग पर्सन को हायर करने की नहीं होगी, बट ultimately the person who has been hired was not the right person. When we say wrong person, बहुत दफा ये होता है कि बंदा इंटरव्यू में बहुत मोटिवेटेड होता है, या बट they are very dedicated towards that organization, they really want to join, but after certain period, after certain, like when they start working, they lose their interest, or they don't want to work. Maybe they are being politicized as well. There are a lot of different factors that can be happened, और उस हो सकते है उस बंदे का खुद ही इंटरेस्ट चला गया हो कि आई डोंट वांट, तो वो आपकी गलत हायरिंग हो जाती है इन टर्म्स ऑफ लाइक बहुत दफा जिसको हमने लास्ट टाइम वर्ड करा टर्नओवर, अगेन एक्सपीरियंस हाई टर्नओवर। जब टर्नओवर का मतलब क्या है कि लोग जाना शुरू हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इट कुड बी ऑफ एनी रीजन, लोग सेटिस्फाई नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मे बी कल्चर अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, मे बी सैलरी पैकेज इतना कंपैटिटिव नहीं है, मे बी पॉलिटिसाइज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, लॉबीज बनी हुई है, जब तक आप एक दूसरे की तारीफें ना करो तब तक आपको कोई मे बी प्रमोशन नहीं मिलेगी या कुछ ऐसा नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज हैज अ इम्पैक्ट ऑन द पर्सन। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में काम करूँ, मुझे पता है कि यार मैं 10 बात बोल दूंगी कि उस पर कोई काम होना ही नहीं है, मेरी राय को दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी इंपॉर्टेंस, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर मैं भी नहीं अपनी राय दूंगी, आई विल ऑल्सो कीप क्वाइट। और जब मुझे मौका मिलेगा, आई वुड लाइक टू स्विच, आई वुड लाइक टू रिजाइन फॉर दैट पोजीशन, एंड आई वुड लाइक टू गो समवेयर where I am being respected, I am giving more valued, because अब वही बात है जिस तरह मैंने HR में हम सबसे पहले कहते हैं इंसान की वैल्यू होती है, काम चल सकते हैं लेकिन अगर आपने लोगों को, आप यू आर नॉट वैल्यूइंग योर पीपल, योर दैट एसेट, तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू रिटेन विद यू फॉर द लॉन्गर रन। वो एक टाइम आएगा, मे बी 6 मंथ्स, अगर उनको अभी फॉर एग्जाम्पल जॉब नहीं मिल रही, थोड़ा सा निकालेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे जब भी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो अगेन those organizations who are good enough, who can retain their employees, अब देखो you have seen people, अगर मैं बात करूं those who are working with maybe with good multinational organization, तो सारी जिंदगी एक ही ऑर्गेनाइजेशन से निकाल सकते हैं because they are really satisfied, जो उनको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है in terms of maybe salary packages, maybe बहुत दफा आपको ये मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए, तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए होते हैं in terms of appreciation, in terms of recognition, कि एम्प्लॉय को आपने उन्होंने रिकग्नाइज करवाया। जिस तरह आप लोग देखा होगा, ये आप लोग जिस तरह हम लोग किसी भी आउटलेट में जाते हैं, टर्म्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स, KFC, ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देते हैं या सेल्समैन ऑफ द मंथ, क्यों देते हैं? जहाँ फूड पांडा ये भी देते हैं। तो दीज आर ऑल टेक्निक्स टू कीप मोटिवेटेड योर एम्प्लॉय, ताकि उनकी मोटिवेशन खत्म ना हो। जरूरी नहीं हर बंदा सिर्फ और सिर्फ पैसे से या मॉनेटरी बेनिफिट से खुश होता है। लोग मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना, एक आपको हल्का सा कोई जस्ट अ पैट ऑन योर बैक, कोई आपको जरा सा थपथपा दे के यार बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, शाबाश, तो वो शाबाश ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको काम में इनकरेजमेंट के लिए। सो अगेन इफ सम ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फोकसिंग ऑन दैट, या बिल्कुल नहीं आपको प्रेस करी, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद मे बी पीपल्स विल स्टार्ट लीविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। और क्या रीजन हो सकती है? मे बी समटाइम्स आपने बहुत दफा ये हो जाता है कि आपने बहुत इंटरव्यूज दिए बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ गुड रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, लाइक बहुत दफा ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई पोजीशन मैंने एडवर्टाइज की, बट मेरे पास जो सीवीज आई उसमें से एक सीवी भी ऐसी नहीं थे जो दैट वाज मतलब मैचिंग माय क्राइटेरिया। इट हैपेंस अ लॉट। और क्या हो सकता है? मे बी मैंने इंटरव्यू भी कर ली, मैंने उन कुछ को बुला भी लिया कि इंटरव्यू, बट स्टिल अगेन इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम, it was not that much fruitful. I was not able, being a HR manager, I was not able to have anyone on board. So this is also one of the aspect. बहुत दफा ये हो जाता है कि मैं किसी को हायर कर भी लूं, बट अगेन ही और शी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई हायर, वही बात है, वो भी एक रॉन्ग हायर ही हो गया, बिकॉज ही और शी इज नॉट कंपैटिबल इनफ टू वर्क अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब HR वाले भी इंसान है, देखो आप, हम वही कहते हैं कि इंटरव्यू में ये कर लो वो कर लो, तो it's a very well prepared game in which everybody, if they are well known and they can ace that interview, so you are going to be successful. So after that being successful, you need to be, again you need to be, जो मोटिवेशन इंटरव्यू के टाइम पे थी अगर वो बाकी टाइम पे नहीं रहती, सो डेफिनेटली आपका काम में वो डिपेक्ट करेगी। अच्छा, बहुत दफा ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल इन मेनी ऑफ द केसेस अगर आप एडवर्टाइज ये कर रहे हो कि आई एम फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड आई एम कंप्लायंस विद ऑल द लीगल बाइंडिंग्स, कि मैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे रहा हूँ, मेरी इन्वायरमेंट में बहुत हेल्थ एंड सेफ्टी है,
बट अगर ऐसा नहीं होता या कोई और इश्यू हो जाता है, कोई एम्प्लॉई आपका वैसे इस बात को हाईलाइट कर देता है कि यार इनको इन्होंने एम्प्लॉयमेंट सही नहीं की, या इन्होंने बायसनेस कर दी है, या इन्होंने फेवरेटिज्म किया, ये नेपोटिज्म पे, तो हमारे यहाँ पे तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट बाहर दे कैन सू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल कि आपने गलत हायरिंग कर ली है, आपने गलत आपने मतलब अपनी कर ली है. सो अगेन कभी एचआर अपनी इस हायरिंग प्रोसेस को दे वांट इट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, कि वो हर चीज में कहते हैं जस्ट वी आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, एसओपी जो लिखी हुई है, हमारा जो क्राइटेरिया है इन टर्म्स इवन इट्स ऑफ टेस्ट आइदर इट्स ऑफ इंटरव्यू, सो वी आर वेरी ओपन, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट. तो दिस इज वन ऑफ द केस, ताकि उनको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इन पे ना हो. समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि ये हो जाता है कि जिसमें मैंने हमने लास्ट में बात की थी, एम्प्लॉयज के दरमियान में अगर सैलरी डिफरेंस हो, कि अगर सैलरी मेरी कुछ और है, किसी की कुछ और है, बीइंग ऑन द सेम डेजिग्नेशन, अगर दो आईटी मैनेजर्स हैं, दोनों आईटी मैनेजर की डिफरेंट सैलरी है, तो यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड जस्टिफिकेशन दैट व्हाई इट्स बीन डिफरेंट. मे बी उसकी डिग्री में डिफरेंस है, मे बी उसके एजुकेशन में, मे बी उसके एक्सपीरियंस में, मे बी उसकी उन एक्सपीरियंस में, उन ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है, दैट्स अ मोर लाइक वर्दी. So again, it depends कि आपने किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. On those ground realities, you need to have a checklist. You need to have a solid, you can say, statement कि अगर कोई इस तरह आप पे कोई बात करता है, आपसे पूछता है कि यार सैलरी में क्यों डिफरेंस है, that difference needs to be having some आपके पास पूरा एक होना चाहिए उसके ऊपर रीजन. Then comes समटाइम्स, बहुत दफा ये भी होता है कि आप अपने जो हमारी जो एक कंप्लायंसेस हैं, जो हमारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारी जो चीजें बनी हुई हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग दैट कम्प्लीटली. कोई ना कोई चीज आपकी मिस हो जाती है, कुछ ना कुछ. जिस तरह हमने क्लास में बात की थी ऊषा, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंस है, देन वी हैव ईईओ दैट इज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, देन वी हैव डिफरेंट कंप्लायंसेस ऑर्गेनाइजेशंस अगर डिफरेंट होती हैं, अगर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके डिफरेंट हैं. तो आपने इन सब अपनी लीगल बाइंडिंग्स को अपने जहन में रखते हुए काम करना है. बिकॉज अगेन बहुत दफा ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा डरती है कि उनको कोई लॉ सूट या लॉ इम्पैक्ट या कोर्ट तक ना जाना पड़े, बिकॉज अगेन इट विल बी अ डिफेमेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वो डिफेम होगी, उसका भी नुकसान है. या बहुत दफा अगर आपने देखा होगा कि एम्प्लॉइज उसके बारे में लिखेंगे दिस इज नॉट फेयर, उन्होंने हमें ऐसा किया, बुलाया, इंटरव्यू लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे अपने किसी और बंदे के एम्प्लॉय को फेवर कर दिया. सो अगेन यू नीड टू हैव दिस वेरी ट्रांसपेरेंट. अगर आप करते भी हो तो आपको इस ट्रांसपेरेंसी के साथ करने के या तो ना पता चले, या फिर वही वाली बात है कि यू नीड टू बी हैविंग वेरी solid these check and balances while from recruitment till the last step, that's maybe health and safety, maybe training and development, maybe appraisal. So आपकी हर चीज बहुत फेयर होनी चाहिए. जहाँ पे नहीं होती तो डेफिनेटली, जिस हमने लास्ट टाइम एक बात की थी, दे आर डिफरेंट मेथड्स कि जहाँ पे लोग फिर इसको उठाते भी हैं, बात भी करते हैं टॉप मैनेजमेंट से. एंड अगेन एक अगर आप पे बुरा नाम आ जाता है तो डेफिनेटली मार्केट में भी सबको पता चल जाता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली मे बी दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस. Any question, anything? एम्प्लॉय के पास ये राइट होता है कि अगर जैसे कोई रॉन्ग पर्सन उन्होंने हायर कर लिया तो वो कोर्ट में जा सकते हैं? होता है, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं होता. इन टर्म्स ऑफ इफ आई टॉक अबाउट हमारे पाकिस्तान में, वी आर नॉट फॉलोइंग दिस रिलीजियसली. हम इसको बहुत रिलीजियसली नहीं फॉलो करते. बाहर में दे आर वेरी मच इनटू दिस कि अगर आपने कुछ ऐसा हो गया और एम्प्लॉई ने कंप्लेन कर दी है, या अगर मैं फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट एन एप्लीकेंट, मैंने बीइंग एन एप्लीकेंट में अभी एम्प्लॉय भी नहीं बना, बट मुझे ऐसा लगा इन्होंने प्रैक्टिसेस में या कुछ ना कुछ ऐसा किया है, तो आई कैन सू दैट ऑर्गेनाइजेशन, या मैंने उसको कोर्ट में लेके जाना चाहे, या मैंने उसको कोई नोटिस भेजा है, तो दैट कैन बी डन. बट यूजली हमारे यहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं की जाती. हमारे यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि जो बंदा जॉब कर रहा हो उसको अगर आप फायर कर दें तो वो भी कोर्ट नहीं जा सकता. वो क्योंकि बेचारा, बिकॉज हाँ सर मैम उसकी वजह ये कि इन्होंने बिल्कुल उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लिखा होता है कि हम बगैर बताए एनी टाइम आपको फायर कर सकते हैं. मतलब एग्जैक्टली. वो बगैर एक्चुअली पहले नोटिस क्या दिए कहते हैं, वो आपको पहले क्लाउजेस में आपसे साइन करवा लेते हैं इनिशियली कि कि हाँ हम if something goes wrong we can fire you on immediate basis without any something notice period, even sometime without salary as well. अगर सैलरी देंगे भी तो उसमें भी एक sometime एक टाइम सर्टेन टाइम पीरियड होगा, उसके बाद हमारी आपकी क्लियरेंस होगी. सो दे ऑलवेज ट्राई टू कीप एवरीथिंग ऑन इन देयर लाइक ऑन देयर साइड. अपने आप को सेफ हैंड लेके चलते हैं ताकि एम्प्लॉय हमें कर ही ना सके कुछ भी. यस मैम. Okay, so these were the personal mistakes. Moving forward now,
HR का भी तक हम थोड़ा सा, क्योंकि हम फाउंडेशन बिल्डअप करें कि HR का सबसे बॉटम लाइन क्या है, they need to be good managers, they need to have, the bottom line is managing. If you are good at managing your resource, your people, your everything, whatever comes in, whatever goes around, like जो आपके inputs, आपके outputs हैं, आपके employees हैं, definitely then you can have the alignment. अगर इसमें alignment नहीं होगी तो जो आपका एंड गोल है, जो आपका स्ट्रेटेजिक गोल है, दैट कैन नॉट बी डन. अगर फॉर एग्जांपल माय जो मेरे प्लान्स है, जो हमेशा मिशन विजन बना हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है, विजन होता है जो मुझे करना है डाउन द लेन, 10 साल में, 5 साल में मुझे कहीं पहुंचना है, या मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम को ये करना है. तो उसके लिए हम डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं, उन प्लान्स को हम गोल्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी में से KPIs बनाए जाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. ये सब चीजें अलाइनमेंट इसलिए की जाती है ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सको और अपनी जो आपने चीजें रखी हुई है उसको अच्छे तरीके से यू कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क ऑन दैट थिंग. सो बेसिकली HRM में दो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, वन इज लाइन मैनेजर एंड वन इज स्टाफ मैनेजर. ये मैं बिल्कुल बेसिक बातें पहले इसलिए करी, थोड़ा सा हम इसको आइडिया हो. लाइन मैनेजर कैन बी एनी एम्प्लॉय. जिस तरह अगर मैं कहूँ मैं अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिपार्टमेंट चला रही हूँ लमनाई का, तो आई एम द लाइन मैनेजर. मेरे नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे मेरे डायरेक्टली मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको टास्क देना, उनको देखना, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करना. दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द लाइन मैनेजर. Staff manager are those people who are assisting and advising line managers. For example, अगर if I talk about university specifically, तो उसमें जो बाकी department, for example HR department है, maybe finance department है, maybe registration department है, मुझे उनसे कोई help चाहिए तो मैं उनसे assistance ले सकती हूँ, maybe उनसे help ले सकती हूँ, maybe उनसे मैं कोई advice ले सकती हूँ. तो they are my staff manager. तो इसी तरह हर department का जो boss होता है वो उसका line manager होता है, वो किसी भी department को, चाहे वो एडमिशंस है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो एग्जामिनेशन है, whoever is the boss is basically the line manager who has the responsibility to look after all the people who are working under his or her directorship, that managerialship. They need to see कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स. अगर मेरे नीचे 10 लोग काम करते हैं, मुझे पता होना चाहिए 10 लोगों को क्या रिक्वायरमेंट्स है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको क्या ट्रेनिंग देनी है, मुझे क्या फैसिलिटीज देनी है, कंपनसेशन मुझे क्या देखना है. So this is all the responsibility of line manager. So line manager की कुछ responsibilities हैं. Again जिस हमने बात की, placing the right people on the right job, उनको orientation दें, उनको train करें, उनकी performance को improve करें, उनका अच्छा relationship बना के रखें, procedure and policies को follow करें. अगर कोई controlling labor cost अगर है तो वही बात है कि आपको अपनी cost को भी बचाना है, उसको भी save रखना है, तो you need to develop that as well. अपने अपने यू नीड टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ ईच पर्सन. अब जिस तरह मैंने कहा, फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि जस्ट टू रिलेट मोर. अगर मेरे डिपार्टमेंट में मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, आई एम नॉट गिविंग दैट मच इंपॉर्टेंस, मैं उनको ट्रेनिंग पे नहीं भेज रही, या मैं उनको एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में या किसी और चीज में या कोई और मीटिंग में इंडल्ज नहीं करी. आई जस्ट वांट देम टू बी सिट ऑन द बैक और जस्ट वर्क लाइक एग्जीक्यूटिव्स और समथिंग लाइक, मुझे उनकी असिस्टेंस नहीं चाहिए. सो अगेन मैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही कि वो ग्रो करें. इसलिए बहुत जब वही वाली बात है, ऑर्गेनाइजेशंस में दे लाइक देयर पीपल टू ग्रो विद देम. अगर मैं मीटिंग्स में कोई चीज सुनकर आई हूँ या मुझे मेरे टॉप मैनेजमेंट ने या बॉस ने बताई है, तो इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म माय सबऑर्डिनेट्स एज वेल, सो दैट दे कैन आल्सो फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस एंड दे कैन कंप्लीट द टास्क एज वेल. अच्छा, बहुत दफा मैंने ऐसे मैनेजर्स देखे, लाइन मैनेजर, जो उन्होंने जो टॉप मैनेजमेंट उन्होंने कहा, उन्होंने खुद तो सुन लिया लेकिन अपने सबऑर्डिनेट को बताया नहीं, बट लेकिन बाद में एक्सपेक्ट किया कि यार आपने तो ऐसा किया ही नहीं. बट जब आप उनको इन्फॉर्म ही नहीं करें, उनको उस लूप में नहीं रख रहे, सो हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेल, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट हैपनिंग ऑन द टॉप. टॉप मैनेजमेंट क्या बोल रही है, क्या करना चाह रही है, क्या एक्सपेक्टेशन है डिपार्टमेंट से. So these all are the responsibilities of line manager to develop that relationship, to have a smooth working conditions, to follow all the rules and policies. At the end of the day, इससे फायदा ये होता है कि आपकी एम्प्लॉय का मोरल अच्छा रहता है, he or she feel committed. वो आपकी डेफिनेटली जब मेरे कमिटमेंट होगी, मुझे पता है मेरा बॉस मुझे इन्वॉल्व करे डिसीजन मेकिंग में, या मेरी राय एटलीस्ट ले रहा है, तो आई विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम. जब तक आप टीम का पार्ट नहीं बनोगे, अपने आप को अगर अलग लेके चलोगे, आइसोलेट रहोगे, तो डेफिनेटली एवरीबडी वुड बी वर्किंग इन दोस साइलोस. नोबडी वुड लाइक टू वर्क एज अ टीम.
So this is again one of the major responsibility of line manager to keep everything in balance. Okay, now again ये जो हमने बात की थी लाइन मैनेजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसके डिपार्टमेंट में चीज़ें आती हैं he or she has to directly deal with that, और अगर कोई और चीज़ें हैं जो उसके डायरेक्टली नहीं है तो that has to be done by the staff manager. और इस प्रोसेस को कहते हैं कॉर्डियल फंक्शन, कि जो लाइन मैनेजर और आपका स्टाफ मैनेजर के साथ अगर जो भी आप कर रहे हो या इवन विद इन दैट डिपार्टमेंट लाइन मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को बता रहा है तो एक फंक्शनल कंट्रोल रख रहा है कि अगर मुझे पता है मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ या मैं अपने जो मेरे अंडर काम करें जो मैं जिनको मैं सुपरवाइज कर रही हूँ उनको पता है, तो दैट्स लाइक अ फंक्शनल कंट्रोल बिकॉज आई हैव गिवन देम अ टास्क, दे आर सपोज टू परफॉर्म दैट टास्क. अगर वो टास्क नहीं करते तो एक ताकि चीजें एक बैलेंस वे में रहें, सही तरीके से रहें. अदरवाइज बहुत दफा ऐसा होता है मैंने कुछ कहा उसने नहीं किया, अगेन एक मे बी बहस या मे बी लड़ाई या मे बी समथिंग हैपेंस. तो इससे बेटर है कि आप हर चीज उसको बहुत डेफिनेट और वेल डिफाइंड बताओ ये करना है. या बहुत दफा आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन उसको उसकी केपीआईज बना देती है या दिस इज द थिंग यू नीड टू डू, ये करोगे आपके केपीआईज आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से ही उठाए जाते हैं कि ये आपके काम है, अगर ये तरीके से कर लोगे प्रॉपरली करोगे तो दिस इज बेसिकली योर फंक्शनल कंट्रोल ऑफ दैट लाइन मैनेजर या एचआर मैनेजर, whoever is like looking for that. Any question? अस्सलाम वालेकुम मैम, एक क्वेश्चन था. अगर लाइन मैनेजर जो है अपने स्टाफ को मतलब इंट्रोडक्शन या कोई अपडेट नहीं देता है तो इट इज अ सेटबैक फॉर द डिपार्टमेंट, और या जो लाइन मैनेजर है वो अपने स्टाफ को मतलब स्किल्ड उसकी डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहा है, ऐसा कोई पॉइंट इसमें हो सकता है? हाँ देखो, अगर वही वाली बात है व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि लाइन मैनेजर की ये प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है कि whoever लाइक जिस तरह मैंने कहा कोई भी लाइन मैनेजर, तो हम वैसे डेजिग्नेशन अगर मैं इसको दे दूं फॉर एग्जांपल बीइंग अगर मैं फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर या मार्केटिंग ऑफिसर या मार्केटिंग मैनेजर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो लोग उसके अंडर आते हैं उनको वो फ्लरिश करें, उनको इंकरेज करें कि अगर आपकी एजुकेशन है तो उसको आप एजुकेशन आगे और लो, अगर आपको मे बी कोई और चीज़ बताई जाती है इन टर्म्स ऑफ लाइक तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ट्रेन करे अपने एम्प्लॉयज़ को. अगर वो ये नहीं कर रहा तो मे बी देयर कुड बी वन ऑफ द रीजन कि ऑर्गेनाइजेशन ही उस पर काम नहीं करी. तो लाइन मैनेजर को ऐसी टॉप मैनेजमेंट से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही कि आपने अपनी मे बी डिपार्टमेंट को एक आपने उसको बूस्ट करना है या आपने उसको आगे लेके चलना है. दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग. अपग्रेडेशन नहीं हो रही एग्जैक्टली. सेकेंडली और दूसरी yes. अच्छा कंटिन्यू कर. जी जी. मैं ये पूछ रहा था जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेवलपमेंट के लिए कोई अगर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उस सिनेरियो में क्या कह सकते हैं हम? अच्छा, फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में से होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपकी डेवलपमेंट पार्ट में इतना फोकस नहीं है सो अगेन फ्रॉम द एचआर पर्सपेक्टिव हम तब यही कहते हैं कि फिर उसको आपको एम्प्लॉई को पता होना चाहिए कि आपका डेवलपमेंट जरूरी है. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर फॉर एग्जांपल इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग मे बी 100 एम्प्लॉइज तो वो मे बी 100 के 100 को वैसे इंपॉर्टेंस नहीं दे सकती, इसीलिए लाइन मैनेजर डेजिग्नेट किए जाते हैं ताकि वो आपको डायरेक्शन एक दे सकें. इफ लाइन मैनेजर इज ऑल्सो नॉट डूइंग, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरह नहीं कर रहा तो द बेस्ट वे इज लाइक कि अपनी सेल्फ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्टेज आता है बिकॉज आपकी वो जॉब एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए एक मे बी आपकी जॉब में भी स्टेगनेंसी आ जाएगी इफ यू डोंट हैव दैट particular training or qualification, maybe you are not upgrading your knowledge or skills in terms of अगर आप trainings हो गई या maybe certifications हो गए या maybe education हो गया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा. आपकी लाइन मैनेजर को ऑब्वियसली कोई नुकसान नहीं है बिकॉज ही और शी वुड बी रनिंग द डिपार्टमेंट, उसको जो कह रहा है वो कर रहे हैं. लेकिन अगर आपको अपनी करियर ग्रोथ को देखना है तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा. आजकल जो एचआर का जो न्यू फिनोमेना यही है कि एम्प्लॉय की जो सेल्फ डेवलपमेंट है that's not just the case with the HR. सिर्फ HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. पहले दिन आजकल एम्प्लॉय को पहले बता दिया जाता है कि इफ यू नीड टू डेवलप योर ओन स्किल सेट, इसको इम्प्रूव करना है, इस पे वर्किंग करनी है तो यू नीड टू सी फॉर योर सेल्फ. इसीलिए अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम अक्रॉस कि यार कोई एक ट्रेनिंग है
You talk to your line manager, you go forward and ask यार मुझे जहाँ जाना है, kindly allow me या kindly initiate this thing for on my behalf, because उसके पास ये authority है कि वो चलो खुद नहीं बता रहा तो आप उसके पास जाके बताओ कि यार मुझे ऐसा करना है, मुझे प्लीज नॉमिनेट कर दें, या मुझे अगर कोई कहीं अगर किसी चीज से ऑर्गेनाइजेशन कैन सपोर्ट मी इन दैट कैन बी अ प्लस एडवांटेज. So you need to think about your career, because at the end of the day it's your career. If you are not having any career progression, अगर उसमें कोई enhancement नहीं हो रही, तो you will be suffering. मैम इसके लिए बेसिकली एक बजट के अंदर ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक हेड रखा जाता है कि वो जो पैसा होगा, वो जो बजट होगा, वो उन पे खर्च होगा. लेकिन बाद जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ये होता ही नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज नहीं होती. एक्चुअली मसला ये है कि अब ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में हेड्स तो हर जगह बनाए होते हैं, बिकॉज दैट्स बीन क्रिएटेड एंड दैट्स देयर. बट एक्चुअली इन हेड्स पे कितना काम हो रहा है, कितनी चीजें वाकई में इससे फ्रूटफुल हो रही हैं, दैट डिपेंड्स. बिकॉज बहुत दफा यही देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं कहूँ, अगर मैं लाइन मैनेजर हूँ, मेरे नीचे 5 इंडिविजुअल्स काम करें, 4 इंडिविजुअल्स काम करें, तो मे बी आई वुड बी लैकिंग सम इंटरेस्ट. शायद मैंने एक को किसी को प्रेफर कर दिया या उसको नॉमिनेट कर दिया, बट किसी को नहीं किया. सो अगेन तभी मैंने कहा एचआर की आजकल जो हम न्यू, जिसको हम कहते हैं न्यू, या एक जो न्यू टर्मिनोलॉजी कह रहे हैं, न्यू एचआर के हम अकॉर्डिंगली हम पहले दिन यही कहते हैं कि एचआर की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की एनहांसमेंट, एम्प्लॉय की करियर ग्रोथ. इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय एज वेल. अगर आपको लगता है कि आपको कोई जरूरत है सर्टिफिकेशन की, यू कैन टॉक टू योर लाइन मैनेजर, ही और शी इज द राइट पर्सन. अगर वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते तो डेफिनेटली यू कैन गो ऑन योर ओन. कुछ ना कुछ तो देखो, वही वाली बात है, एट द एंड ऑफ द डे जो चीज भी करोगे, फायदा किसका? अपना फायदा, अपनी सीवी में एडिशन होगी. सीवी में एडिशन इन टर्म्स ऑफ मे बी सर्टिफिकेशंस है, इन टर्म्स ऑफ वर्कशॉप्स है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स है, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग व्हाट यू हैव अटेंडेड, तो वो आपको ही फायदा होगा उस चीज का. लेकिन ये तो परमिशन भी चाहिए होगी ना, अगर डिपार्टमेंट आपको जाने ही ना दे फिर क्या होगा? बिल्कुल, मैंने इसीलिए यही कहा कि लाइन मैनेजर अगर आपको सपोर्ट नहीं करा, so again that will be a big question mark, that will be a hurdle in your career progression. कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ नहीं जाने दे रही, they are like stopping you or they are like maybe forcing you कि नहीं अभी ये नहीं कर सकते. So again you need to, फिर वही वाली बात आ जाती है कि आपको फिर खुद देखना है कि यार मेरे लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कि कभी मैं अगर कोई चीज इतनी है मेरी करियर के लिए, वो अच्छा फायदेमंद है, कोई ऐसी ट्रेनिंग आ रही है, बट ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एक दफा अपने मे बी लाइन मैनेजर से बात की, that person is not supporting my that idea, so maybe what I have to do, so आप कुछ और तरीके से, maybe you took a short leave or maybe you were like fine मैं leave ले ली. So again because ये चीजें एक बार एक certain time period के बाद, एक certain age के बाद they would be coming into